اسٹارٹ کرو۔ السلام علیکم، میرا نام حسن بزنس والا ہے۔ آج میں کرنے جا رہا ہوں انٹرویو اویس اے آئی والے کے ساتھ۔ تو ان سے ہم پوچھیں گے ان کی لائف جرنی کے بارے میں، وہ کیسے آئے ریحان اسکول میں، کیوں آئے، ابھی کیا کر رہے ہیں۔ تو السلام علیکم اویس۔ وعلیکم السلام۔ جی اویس بھائی اپنا انٹروڈکشن کرائیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد اویس ہے اور میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے نئی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سیکھنے میں بہت ہی شوق ہے۔ اچھا اویس، آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ پہلے کیا کرتے تھے، ابھی کیا کر رہے ہو؟ میں نے جیسے کہ بتایا کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں پڑھائی کرتا ہوں یہاں پہ جتوئی شہر میں المرتضیٰ اسکول ہے، اسی میں پڑھائی کرتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے فرسٹ ایئر کے ایگزام دیے ہیں اور ابھی ایگزام بھی چل رہے ہیں، وہ بھی دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر واپس لینے کے لیے ایگزام دے کر واپس ادھر ہی جانا ہے۔ اچھا اویس، تو آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ ریحان اسکول میں بھی آئے تھے، تو ریحان اسکول میں جب آئے تھے کیا ایکسپیرینس آپ کا رہا؟ دیکھیے، یہاں سے جب میں پہلی بار گھر سے نکلا تھا سیکھنے کے لیے تو مجھے کسی چیز کا اتنا علم نہیں تھا۔ تو میں جب ریحان کالج میں پہنچا، وہاں پہ نیو اسٹوڈنٹ تھا، تو پہلے تو کچھ دن لگ گئے وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں، پھر کچھ دن میں ایڈجسٹ ہو گیا تو پھر اچھا کام ہونے لگا، یعنی کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تو وہاں پہ جا کے میں نے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی جن کے بارے میں پہلے مجھے پتہ نہیں تھا۔ اچھا، آپ کتنے وقت ریحان کالج میں رہے؟ دیکھیں، میں تقریباً 1 سے 1.5 منتھ ادھر رہ چکا ہوں۔ اچھا، 1 سے 1.5 منتھ میں آپ نے ادھر کیا چیز سیکھا آپ نے؟ دیکھیں، میں نے وہاں پہ ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ اور کینوا کو استعمال کرنے کا، یعنی کہ ویڈیوز وغیرہ بنانے کا، اور دوسرا سانگ وغیرہ، پکچر وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بنانے کا میں نے طریقہ سیکھا وہاں پہ۔ اچھا، آپ کو اے آئی میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ دیکھیں، اے آئی میں دلچسپی ایسے پیدا ہوئی کہ میں ویڈیو وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں، تو ایسے شوق ہو گیا مجھے ویڈیوز وغیرہ بنانے کا، پکچر وغیرہ بنانے کا۔ تو میں نے سوچا اے آئی سیکھتا ہوں، تو اے آئی سے بہت ہی آسان کام میں نے سنا ہے اے آئی ایک ایسی چیز ہے، اسے استعمال کرو، انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جو چیز چاہے وہ اے آئی سے بنوا سکتا ہے۔ تو اسی طرح میرا انٹرسٹ ہوا اے آئی میں، پھر میں نے اے آئی سیکھنے کی کوشش کی۔ جب آپ ادھر پنجاب سے نکلے کراچی کے لیے، تو آپ کیا سوچ کے آ رہے تھے؟ میں ادھر 4 سال کا جو ادھر کورس تھا، کیا سوچ کے ادھر آئے تھے؟ میں 4 سال میں کیا بناؤں؟ دیکھیں، سوچ تو یہ تھی میری کہ میں ابھی جاؤں گا، یعنی کہ 4 سال وہاں پہ رہوں گا تو بہت ساری ایسی چیزیں سیکھوں گا جن کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے کہا سیکھوں گا، پھر اپنے یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں پیسہ وغیرہ کمانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، تو میں نے سوچا جا کے میں اے آئی سیکھوں گا، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، تو اسی طرح بہت ساری یعنی ویب سائٹیں وغیرہ بنانا سیکھوں گا، تو سیکھ کر آؤں گا تو بناؤں گا، پھر پیسے کماؤں گا اور اپنے اخراجات خود اٹھاؤں گا۔ اسی وجہ سے میں اے آئی سیکھنے کے لیے گھر سے ماشاء نکلا تھا۔ اللہ، زبردست۔ اچھا، ہاسٹل میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہاسٹل میں رہنے کا فائدہ یہ تھا، یہاں سے میں نکلا ہوں تو فری آف کاسٹ وہاں پہ رہتا تھا، یعنی کہ مجھے کوئی فیس نہیں دینی پڑی، کچھ بھی نہیں۔ ریحان صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں وہاں داخلہ دیا، تقریباً 1.5 مہینہ تو میں رہ چکا ہوں۔ انشاءاللہ انہوں نے 4 سال کا دیا ہے، تو میں واپس بھی جاؤں گا، 4 سال اپنے ادھر یعنی کہ اسپینڈ بھی کروں گا، تو انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں سیکھوں گا۔ وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ رہنے کے اخراجات یعنی کہ سب چیز ریحان صاحب کے انڈر میں ہے، وہاں پہ رہنے کی، کھانے کی، پینے کی سب چیز انہیں کے انڈر گیا ہے، وہی سب کچھ پرووائڈ کرتا ہوں۔ اچھا، تو ابھی آپ ریحان کالج سے واپسی اپنے گاؤں گئے، تو واپسی آنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، وہاں پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ میں واپس آ کے بہت ساری چیزیں جو مجھ سے رہ گئی ہیں وہ دوبارہ آ کے سیکھوں گا میں۔ اچھا ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، تو میرا دوسرا سوال آپ سے ہے، کاروبار میں اے آئی کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیں، کاروبار میں
एआई के फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि हम कोई कारोबार करते हैं तो पहले सोचते हैं कि उसको कैसे करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो एआई के बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह, बहुत सारे और भी हैं ग्ok, तो मेटा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हम सवाल करके जवाब ले सकते हैं। जैसे कि आप चैट जीपीटी है, हमें उसे इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई सवाल पूछते हैं, तो यानी कि हमारा ये मकसद है, हमने ये चीज़ करनी है, आगे ये कैसे करना चाहिए, कहाँ स्टार्ट करना चाहिए, कितनी रकम से स्टार्ट करना चाहिए। तो चैट जीपीटी हमारी इसमें बहुत सारी मदद करता है क्योंकि वो एआई का टूल है, तो इसमें एआई की भी मदद शामिल हो जाती है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, एआई इंसान की जगह ले सकती है क्या? देखिए, इंसान की जगह तो नहीं ले सकती क्योंकि इंसान के अंदर सोचने की सलाहियत होती है, तो इसमें बहुत सारी इखलाक होता है इंसान के अंदर, जो चैट जीपीटी के अंदर नहीं होता। लेकिन ये चैट जीपीटी इंसान की जगह ले नहीं सकती, मगर मैं ये कहूँगा चैट जीपीटी यानी कि जो एआई है, वो ऐसे काम कर सकती है जो इंसान के बस के नहीं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तलबा को एआई के बारे में क्यों सीखना चाहिए? देखें, एआई सीख कर ना इंसान के बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जो आसान हो जाती हैं। मैंने जैसे कि बताया, जब मैं यहाँ से गया तो मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं था, तो एआई सीखने की नियत से भी गया और एआई को काफ़ी सारा मैंने सीखा। तो मुझे बहुत सारे एआई के ऐसे टूल पता चले जिनसे यानी कि मैं कोई भी हेल्प ले सकता हूँ। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं जो काम करता हूँ, उन्हीं के बारे में भी चैट जीपीटी से, ग्ok से, ये बहुत सारी ऐसी एआई के टूल हैं जिनसे मैं ये पूछ सकता हूँ, सवाल-जवाब कर सकता हूँ। तो एआई उसमें भी मेरी मदद करता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके ख़्याल में एआई का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? देखें, एआई का फ़ायदा यही है कि इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैंने कोई वेबसाइट बनानी है या कुछ बनाना है, तो मैं मोबाइल पे बना सकता हूँ, लैपटॉप होना चाहिए मेरे पास, लैपटॉप पे बना सकता हूँ। या अगर मैंने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, फ़र्ज़ करो मैंने बाहर से कोई चीज़ मँगवानी है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पे बैठ के अभी मोबाइल से ऑर्डर करके मँगवा सकता हूँ। ये भी एआई का एक कमाल है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चैट जीपीटी क्या है और वो कैसे काम करता है? देखिए, चैट जीपीटी मैंने पहले ही बताया, चैट जीपीटी एक एआई का ऐसा टूल है जिसके पास इस दुनिया का जितना भी इल्म है, सारा चैट जीपीटी के पास है। आप सवाल-जवाब करें, किसी चीज़ के भी मुतालिक करें, अपने माशरे के मुतालिक करें, अपनी बुक्स के मुतालिक करें। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उन यानी कि चीज़ों के बारे में करें। चैट जीपीटी एक ऐसा आला है जिससे आप जिस तरह का भी सवाल करोगे, वो आपको उसी का जवाब देगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सवाल किस टाइप का करते हो, जिस टाइप का आप सवाल करोगे, जवाब भी वो उसी टाइप का ही देगा आपको। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तालीम के शोबे में एआई किस तरह मदद कर रही है? देखें, मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एआई यानी चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एआई में इसका भी बहुत अहम किरदार है, क्योंकि जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं, अपने टीचर्स वगैरह से लेक्चर वगैरह लेते हैं, तो वहाँ से जब घर आते हैं, तो हमें ये तो कांसेप्ट होता है कि मुकम्मल पता नहीं होता कि क्या-क्या पढ़ा है। तो हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह यानी कि ये जो एआई ने बनाए हुए हैं सारे सिस्टम, हम इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, इन्हीं से गाइड ले सकते हैं। इसके बाद हमारे यानी कि तालीम में ये चैट जीपीटी इस तरह एआई यानी कि फ़ायदा हमारा है। अच्छा, आजकल तो माँ-बाप अपने बच्चों को मोबाइल तो नहीं देते ज़्यादा कि वो गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या लगता है मोबाइल का इस्तेमाल सही है या फिर गलत है? देखें, मेरी नज़रों में तो सही है क्योंकि ये उस बंदे पे डिपेंड करता है जिसके पास ये होता है। जैसे कि हमने अभी मोबाइल अपने पास उठाया है, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं दूसरे लोगों के लिए ताकि वो देखें, तो वो नसीहत पकड़ें, कुछ सीखें, ये है वो एआई के अंदर है, वो सीखें, ये चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि वो ये भी देख सकते हैं, कुछ और भी सोशल मीडिया पे जाके टिकटॉक वगैरह, ये यूट्यूब, ये कोई भी वीडियो देख सकते हैं, अपना टाइम ज़ाया भी कर सकते हैं। अगर अच्छी वीडियोज़ देखना चाहें जैसे कि कोई लेक्चर वगैरह, कोई स्टडी के बारे में, कोई किसी काम के बारे में, अगर वो भी देखें तो उससे फ़ायदा भी हो सकता है। ये इंसान पे डिपेंड करता है जो जिसके पास ये हो। माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, एआई के इस्तेमाल से कौन से खतरात पैदा होते हैं? देखिए एआई एआई से एआई के खतरात कुछ इस तरह से हैं कि एआई को हम यूज़ करते हैं। एआई के खतरात ये है, तो एक तो हम फेक वीडियोज़ वगैरह बना लेते हैं लोगों की, पिक्चर वगैरह बना लेते हैं, तो उसे हम जाके मीडिया पे यानी कि सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो इस तरह इंसान की बदनामी हो जाती है, तो ये खतरात हैं। लेकिन एहतियात ज़रूरी है, हमें अपनी जो ज़ाती इन्फॉर्मेशन है, वो एआई को नहीं देनी चाहिए मेरे ख्याल में तो। अच्छा, एआई के कुछ फ़ायदे भी हमें बताएँ? हाँ, फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे तो मैंने जैसे कि बताया है, हमें हर काम जो मुश्किल है, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम घर बैठे कर सकते हैं एआई से। अच्छा, तो अपने उम्र दोस्तों को, अपने इलाके के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि एआई में आएँ, एआई सीखें, इसमें बहुत ही फ़ायदे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आओ रेहान कॉलेज में आओ या किसी हमारे दूसरे कैंपस में आओ, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि आओ एआई सीखो, दूसरी चीज़ें सीखो जो कि एआई के टूल्स वगैरह जैसे कि हैं, ऑटोमेशंस, ये बहुत सारी ऐसी फ्रीलांसिंग ये हैं, एआई है, इनको सीखें ताकि अपना रोज़गार कमा सकें। कब तक अपने माँ-बाप के ऊपर डिपेंड करेंगे? कुछ कमाना सीखें और अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। तो मैं ये गाइड माशाल्लाह, करूँगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि आज हमारे साथ मौजूद थे अवैस एआई वाला। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अवैस एआई वाले के, जो उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे साथ इंटरव्यू किया। बहुत-बहुत शुक्रिया अवैस आपका। अल्लाह हाफ़िज़।